a very good afternoon to all of you. I'm Saintha, your host for today's Insta Live from beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be doing good. So today we are going to dive deep into the world of dermatology with focus on a topic which is close to all our hearts: the importance and significance of sunscreen. Yes, now sunscreen is something that we are supposed to apply daily, regularly, with equal intervals, etc. How much we apply, how we apply, everything plays an important role. But still, the fact remains that many of us do not use sunscreen on a regular basis. जब सन होता है, धूप होता है, बाहर बहुत ब्राइटनेस होती है, या हम बीच वेकेशन पे जा रहे होते हैं, that's mostly when we apply sunscreen. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. We need to apply sunscreen regularly. It works as a jacket on our skin which safeguard our skin from all the harmful radiations of various light sources, including sun, and also it works as an anti-aging product as well. So we'll talk about it, and to talk on it we are going to be joined shortly by Dr. Megha Tandon, who is MBBS MD and is a skilled dermatologist, hair transplant surgeon and aesthetic physician with over 7 years of experience. She completed her medical education from the Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, a premier tertiary care center in India. She has pursued advanced fellowships in aesthetic medicine, laser surgery, and FUE hair transplantation at leading institutes in India and abroad. Dr. Tandon has authored multiple publications in reputed national and international journals and has been an invited faculty at various conferences with an impressive record of performing 300 plus successful hair transplant. She is renowned for delivering natural results using the latest hair restoration techniques. So here we go. We are going to be joined shortly by Dr. Megha Tandon, a dermatologist and hair transplant surgeon, who's going to tell us what is the role and importance of sunscreen. So in case you have any doubts, any questions, any queries, do find yourself free to write in the comment section. We'll address those questions as well, and plus we'll also try to understand how to use sunscreen, what is the best way of using sunscreen, because when we go into the market, and these days going in the market doesn't mean physically going in the market, because we have online platform as well. So when we see the amount or the number of sunscreens available, it's huge. We have sunscreen in various formulations for every skin type, for any skin type, for every skin concern, etc. So it's important to understand, first of all, what is our skin type, what are our skin issues, how to address this, and how to be. So if you are still not using on your sunscreen on a regular basis, or not getting the desired results from your sunscreen, probably you are not using your sunscreen, or the product is not fine or perfect or suitable for you, or maybe you are not using it correctly. So today we will seek answer for all these questions. So what are your queries, what doubts you have regarding sunscreens? Please feel free to write it down, jot it down in the comment section. डॉक्टर मेघा टंडन जल्द ही हमारे साथ जुड़ने वाली है, और उनके साथ हम जानेंगे कि किस तरह से सनस्क्रीन हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, तो कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है, और किस तरह से सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है, कितनी बार इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, और कब हम नहीं भी इस्तेमाल करें तो भी चलेगा. इस वक्त काफी बारिश बहुत सारी जगहों पे हो रही है, तो क्या तब भी यूज करना है. और हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर मेघा टंडन. A very warm welcome to you, doctor. It's a pleasure to have you with us in this Insta Live. Thank you so much. Thank you. Hello, everyone. So, Dr. Ras, today we are going to talk about, the importance and significance of sunscreen. To start with, what is the role of sunscreen for our skin and skincare routine? Okay, so sunscreen basically is the most important part of your skincare routine. Why? Because sun is everywhere, as we all know, and sun emits these harmful radiations called as ultraviolet radiations, which are the most harmful out of the whole spectrum of the sun rays.
and it also has visible light, it also has infrared rays, and these rays constantly come and harm our skin, which can lead to various deleterious effects like pigmentation and even as bad as skin cancer. Right. So it's important to use sunscreen on a regular basis. Still, the fact remains, doctor, that in our country, still, 70%, 69, 70% of people are not using sunscreen on a regular basis. We Right. mostly apply sunscreen because उस पे लिखा ही है ना sunscreen. तो हमें लगता है जब बाहर sun है, तेज sun है, तेज धूप जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, or in case we are going for a beach vacation, we make sure that we are carrying sunscreen. Otherwise, when it's windy, it's cloudy, like these days when it's raining in most parts of our country, हमें लगता है कि अब सनस्क्रीन की क्या जरूरत है? Do we really need to apply sunscreen on a regular basis, doctor? Yes, we need to apply sunscreen on a regular basis. Like you rightly mentioned, even if we are indoors, we are constantly using our mobile phones, we are constantly in front of laptops and TV screens, which emit the harmful blue light. Okay, so blue light is something which affects our skin in a very bad way. It also leads to increased erythema, pigmentation, redness on the skin, right? So that is also equally harmful as the ultraviolet rays. So for that, we need to protect our skin. We have our windows open all the time and we have sun rays coming inside. So it is very important to reapply sunscreen at home also while you're indoors. Right. So even if you are indoor, even if you are working in a air conditioned atmosphere environment, even if it's not sunny outside, the other radiations that are getting emitted from various other sources of light are equally damaging your skin. Right now, I'm in front of a laptop or mobile or ring lights or LED lights. They are Even impacting my even skin. the objects which emit heat, like ring lights, also they emit heat, and they also Mm. yeah, so they give out something which is called as infrared rays, which are very harmful to the skin, which make the skin very sensitive. Right. So no matter you're indoor, outdoor, use sunscreen on a regular basis. Now the main question, doctor. We Yeah. often wonder, कई लोग कहते हैं रोज लगाओ, 3 बार लगाओ, हर 2 घंटे में लगाओ, कैसे लगाओ, कितना लगाओ. These are the questions we are so confused with. We would Yeah. like you to have some, clarity for us on that. Yeah, right. So sunscreen ideally should be applied 20 minutes before going out in the sun. So that is the first thing. Apart from that, sunscreen should be repeated every 2 hours. Every 2 hours means till the time we have active sun rays, like till 3 o'clock, at least 2 to 3 p.m. We should reapply sunscreen every 2 hours. And then, like I said, during the evening time, you can apply sunscreen because if you're constantly in front of laptops, you can repeat it that way. अब कितना लगाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सनस्क्रीन के लिए. सनस्क्रीन हमें आइडियली लगाना चाहिए 2 finger lengths. This, the sunscreen concentration ideally is 2 milligrams per centimeter square of your body. So इतना amount which is equivalent to around 3 ml, ये हमारे फेस के लिए एंड नेक के लिए अप्रोप्रिएट है. And the same amount which is 3 ml, that is good for each of our arms which are exposed. अगर हमने स्लीवलेस पहना है तो 3 ml हमारे पूरे फेस और नेक के लिए एंड 3 ml ऑन ईच ऑफ आर्म. दैट इज द अप्रोप्रिएट अमाउंट. ऑल्सो 6 ml का अमाउंट विच इज लाइक स्लाइटली मोर देन अ टी स्पून, इतना अमाउंट हमारा अप्रोप्रिएट होता है फॉर ईच ऑफ आर लेग्स, for the front area like our torso and the back. So this is the appropriate amount of sunscreen which should be applied. राइट. तो एक तो लगाना है रेगुलरली, हर 2-2 घंटे में रीएप्लीकेशन बहुत जरूरी है, और कितना अमाउंट लगाना है जो डॉक्टर ने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ डॉक्टर, व्हेन वी गो आउट टू बाय सनस्क्रीन, देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशंस रिटन ऑन द बॉक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एसपीएफ टू Blue Star rating to PA+++, and we are again so confused. Plus, we have various skin types. There are various formulations available of sunscreen. तो किस तरह से हम अपने सनस्क्रीन का चुनाव करें, क्या चीजें उसमें देखें? राइट. सो सबसे पहले सनस्क्रीन का चुनाव कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने बताया इतनी सारी सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में, तो हम कैसे यूज करें. सो सबसे पहले एसपीएफ देखते हैं, जो सबसे कॉमनली लोग ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर सीइंग अ सनस्क्रीन.
एसपीएफ Right. मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर हमारे यूवीबी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज में भी मल्टीपल स्पेक्ट्रम होता है, टाइप ऑफ रेज आती हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती हैं विच आर द मोस्ट हार्मफुल वंस आउट ऑफ द लॉट, ये आपकी स्किन पे बेसिकली सनबर्न करने की टेंडेंसी रखती है, ये इससे प्रोटेक्शन दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसपीएफ देखना है, क्योंकि एसपीएफ सिर्फ आपका Hmm. यूवी रेज से प्रोटेक्शन बताता है, ये आपका बाकी Right. रेज जैसे यूवी ए रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, इससे प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो Hmm. एसपीएफ हमें आइडियली 30%, एसपीएफ 30 और हायर, दिस शुड बी द मिनिमम विच वी शुड सी। ऐसा नहीं है जितना ज्यादा एसपीएफ होगा उतना अच्छा होगा। एसपीएफ 30 देखा गया है, एसपीएफ 30 इन साइंटिफिक स्टडीज हैज बीन शोन दैट एसपीएफ 30 हमारे 93% सन यूवीबी रेज को से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, एंड एसपीएफ 50 97% रेज को प्रिवेंट करता है, and more than SPF 50 that is SPF 70 80 हार्डली 98 99% को प्रिवेंट करता है, ठीक है। लेकिन तो अगर हम SPF 30 और हायर यूज करते हैं विद द मार्जिन इज वेरी लेस, सो द Hmm. मिनिमम SPF which we should see is SPF 30 in our sunscreen, which protects 93%, around 93% यूवीबी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब एसपीएफ जितना ज्यादा होता रहेगा उतना सनस्क्रीन थोड़ा कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल होता है, थोड़ा हेवियर होता है क्योंकि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट Right. ज्यादा यूज करते हैं, तो थोड़ा कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल की तरफ जाता है। इसीलिए वरना आप पूछेंगे कि जहां मैं 93% कर रही हूँ वहां मैं 99% क्यों नहीं ले सकती, राइट। तो ये रीजन होता है एसपीएफ के बढ़ने का, थोड़ा ग्रीसीनेस देता है, थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल होता है। Hmm. अब आते हैं Hmm. सेकंड चीज पे विच इज पीए स्टार, पीए रेटिंग, दैट इज बूट Hmm. स्टार रेटिंग। दिस इज बेसिकली प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी ए रेज। हार्मफुल यूवी ए रेज जो होती है, जो बेसिकली फोटो एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो Okay. ये तो बूट स्टार रेटिंग बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन ने की दी हुई रेटिंग है जो आपके एसपीएफ उस पे लिखी रहती है। हम नॉर्मली देखेंगे पीए स्टार, पीए जो रेटिंग होती है हमें आइडियली देखनी चाहिए कि ये 3 स्टार और अबव होनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है अगर ये 4 स्टार रेटिंग है, बट 3 स्टार एंड अबव इज गुड फॉर योर फॉर रेगुलर यूज, क्योंकि 3 स्टार समवेयर अराउंड 70 to 80% यूवीए रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। 4 स्टार जो होता है वो अराउंड 80 to 90, एंड 5 स्टार विच इज वेरी वेरी गुड, दैट इज लाइक 90 एंड अबव, ठीक है। Right. तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन विच इज पीए स्टार, पीए रेटिंग क्या होती है हमारी। अब आते हैं Right. बाकी चीजें जो हमें देखनी चाहिए सनस्क्रीन में। सनस्क्रीन में देखना चाहिए कि सनस्क्रीन पे सबसे पहले लेबल पे मेंशन होना चाहिए दैट इट इज हाइपो एलर्जेनिक और नॉन एलर्जेनिक, ठीक है। क्योंकि हमारे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिनमें केमिकल फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, ये कभी कभी Hmm. सेंसिटिव स्किन टाइप को इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक Okay. हो गया, या सो दैट इज समथिंग विच इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम Hmm. सनस्क्रीन का मतलब है कि ये हमारी सनस्क्रीन यूवी ए, यूवी बी, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, ये चारों रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रही है, विच इज द फर्स्ट लेबल। सेकेंड इज Right. लाइक आई मेंशन, इट शुड बी हाइपो एलर्जेनिक और नॉन एलर्जेनिक, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में इरिटेट करती है। Hmm. अब थर्ड चीज, इट शुड आइडियली बी नॉन कॉमेडोजेनिक। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी स्किन टाइप्स होती हैं, एक्ने प्रोन स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, तो आइडियली हमें नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन एक्ने प्रोन स्किन वालों को यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन, कोमेडोन का मतलब होता है जो एक्ने की बिगिनिंग स्टेज होती है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट Hmm. दैट वी प्रिवेंट दैट, राइट। Ah. उसके अलावा हम देख सकते हैं दैट हमारी जो सनस्क्रीन होती है ये कौन से फॉर्म्यूलेशन की होती है। कौन से फॉर्म्यूलेशन की होती है इसका मतलब जेल बेस्ड आती है, क्रीम बेस्ड आती है, लोशन बेस्ड आती है, स्प्रे फॉर्म आता है सनस्क्रीन का, विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन विच आर अवेलेबल। Hmm. So ideally, people who have dry skin type, they can use sunscreen which is cream based, ताकि थोड़ा स्किन हाइड्रेटेड रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो जेल बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं, दीज आर वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, राइट। Hmm. सो दिस इज समथिंग which people can see while buying the sunscreen.
एक ही जवाब में आपने इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए डॉक्टर, एंड वी हैव नाउ दी क्लैरिटी। होता क्या है ना, कई बार आपने तो बहुत सुने होंगे इस तरह की कंप्लेंट्स दैट पीपल नॉर्मली डोंट यूज सनस्क्रीन, सेइंग कि बहुत ग्रीसी लुक देता है, बहुत पैची लुक देता है, और वी डोंट लाइक द वाइट कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इफ यू Exactly. चूज द राइट काइंड ऑफ सनस्क्रीन एज पर योर स्किन टाइप, एज पर योर Right. स्किन इश्यूज, देन ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और मैंने बिल्कुल। जिन लोगों को एक सही सनस्क्रीन मिल गया है, उनको ये बूस्ट करते हुए भी सुना है कि ये उनके ब्यूटी केयर का, स्किन केयर का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज दे गेट अ ग्लो एंड दे फील दैट नाउ देयर स्किन इज गेटिंग प्रोटेक्टेड। Many times people often say, doctor, is it correct that sunscreen also works as an anti-aging product? यस, सनस्क्रीन एंटी एजिंग कैसे है? बिकॉज कांस्टेंट सन एक्सपोजर हमारी स्किन में कोलाजन डिग्रेडेशन करता है, राइट? बिकॉज सन एक्सपोजर लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स इन आवर स्किन। तो ये फ्री रेडिकल्स बेसिकली हमारी एक तरीके से डैमेज करते हैं, कोलाजन को कम करते हैं। तो हमारी एज के साथ तो कोलाजन कम होता ही है, साथ साथ सन एक्सपोजर से भी कोलाजन का लेवल कम होता है हमारी स्किन में। इसके लिए ही इसे सनस्क्रीन को बोला जाता है दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिवेंटिव एंटी एजिंग मेथड विच पीपल कैन यूज। राइट। अच्छा, दो ऐसे स्किन इश्यूज हैं जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, उन दोनों का आपने कहीं कहीं जिक्र भी किया है। एक है एक्ने और एक है मेलास्मा या पिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन। राइट। राइट। तो एक्ने और एक्ने के ट्रीटमेंट में खास तौर पे हमने देखा है कि डर्मास जो है सनस्क्रीन जरूर देते हैं। एंड अगेन मेलास्मा, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, तो उसमें एज अ प्रिवेंटिव मेजर कहा जाता है कि सनस्क्रीन यूज करें। तो इस पे वी वुड लाइक यू टू शेड सम मोर लाइट ओवर दीज टू इम्पोर्टेंट स्किन इश्यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन। Yeah, right. So this is a very good question because acne में we definitely write a sunscreen, which is very very important. Sunscreen जैसे मैंने बताया स्किन टाइप के हिसाब से नॉन कॉमेडोजन एक सनस्क्रीन यूज करना चाहिए जिन्हें एक्ने की शिकायत होती है। उसके साथ साथ इसलिए जरूरी है सनस्क्रीन को यूज करना बिकॉज एक्ने की मेडिकेशन विच आर यूज, बी इट टॉपिकल मेडिकेशन, बी इट ओरल मेडिकेशन, इट मेक्स द स्किन, जो नॉर्मली यूज करते हैं एक्ने के ट्रीटमेंट, they make the skin more sensitive to the sun. They are photosensitive medications. That is why it is very important to do a good sun protection so that you don't face any increased photosensitivity risk along with that. साथ साथ अगर आप मेलास्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें, पिगमेंटेशन ऑफ एनी काइंड विच हैपेंस ऑन द फेस दैट इज इंक्रीज्ड बाय सन एक्सपोजर। ओके, बिकॉज लाइक आई सेड यूवी रेज हो रही हैं, ब्लू लाइट हो रही है, ये पिगमेंटेशन को मेलानोसाइट्स, द सेल्स which are known to make the pigment in the skin, इन्हें स्टिमुलेट करती है जिसकी वजह से मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ता है और पिगमेंटेशन बढ़ता है। तो इसलिए मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन केसेस को तो सनस्क्रीन यूज करना ही चाहिए। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई वुड जस्ट वांट टू ऐड अ पॉइंट कि आजकल जिन्हें पिगमेंटेशन हो गया है फेस का, जिन्हें हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, उनके लिए आजकल टिंटेड सनस्क्रीन भी अवेलेबल है मार्केट में। राइट। सो टिंटेड सनस्क्रीन, फाउंडेशन जैसा जो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो थोड़ा बीबी क्रीम जैसा लुक देता है आपके फेस को, तो आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं स्पेशली फॉर पीपल हु हैव ब्लेमिशेस, हु हैव पिगमेंटेशन। तो ये कैमोफ्लेज की तरीके से वर्क करता है बिकॉज पीपल थिंक दैट इन मॉर्निंग वी डोंट लाइक टू अप्लाई फाउंडेशन, राइट? इट डजंट सूट आवर स्किन इन द मॉर्निंग, सो यू कैन यूज अ गुड टिंटेड सनस्क्रीन। राइट। तो अगर स्किन इश्यूज भी हैं तो भी उसमें सनस्क्रीन आपकी बहुत हेल्प करता है प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी, और उसके बाद भी स्पेशली एक्ने में, जैसे पोस्ट एक्ने पिगमेंटेशन हम देखते हैं, जो मार्क्स देखते हैं उसमें भी। लेकिन जरूरी ये है, अगर कोई स्किन इश्यू है या आप कंफ्यूज हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या सनस्क्रीन सूट करेगा नहीं करेगा, प्लीज गो टू अ क्वालिफाइड डर्मेट, दे विल हेल्प यू इन चूजिंग द करेक्ट सनस्क्रीन। बिकॉज व्हाट हैपेंस, I'm sure Dr. Tannen, you'll also agree with me, the market is flooded with products these days. There are so many products on the name of, especially online, there are so many influencers endorsing so many products. They say कि बिल्कुल customize आपके skin के हिसाब से कर देंगे, and we fall for it. And we have started experimenting a lot with our skin care products. पहले होता था एक लेते थे और 20 साल हम एक ही ब्रांड फॉलो करते थे, अब ऐसा नहीं होता, हर 2 महीने में हमारे ब्रांड्स चेंज होते हैं। So, in case of sunscreen, again, do you think medicated sunscreens are better, or what's your stand on it, doctor?
Yeah, so I am definitely a believer that medicated sunscreens are good. I just had a patient. I would not like to name the brand, but आपकी जो sunscreens normally market में available हैं, जो these हम्म, are high end products, okay? So इसमें आपके fragrance होता है. There's something which is fragrance. लोगों को smell बहुत अच्छी लगती है, right? right. So people buy them, and when people have sensitive skin, they might develop something which is called as a allergic contact dermatitis. सिवियर एलर्जी हम्म, डेवलप हो सकती है उन फ्रेग्रेंस से आपके स्किन के ऊपर. तो इसीलिए आइडियली वेन एवर यू आर ट्राइंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इवन इफ आई से पीपल आर गोना ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट्स, राइट? सो व्हाट हैपेंस, आप अगर कोई भी नया प्रोडक्ट, नई सनस्क्रीन ट्राई करें, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिहाइंड योर ईयर. आई वुड ऑलवेज रेकमेंड दैट. तो आप उसे यूज कर right. सकते हैं. दैट्स अ वेरी गुड वे टू प्रिवेंट severe allergy on your face or exposed areas. Right. A very common question people ask is कि एक मिनिमम, एक बहुत ही बेसिक स्किन केयर रेजिमे क्या हो और उसमें सनस्क्रीन कहाँ पर आएगा, उस ऑर्डर में कब सनस्क्रीन अप्लाई करना है. So sunscreen, ideally your order in the morning routine should be first cleanse your face. Then if you're applying any active medication or any active serum advised by your dermatologist, you can use that. And then post that you can top it up with a moisturizer. And at last we should apply the sunscreen. अगर आपको makeup apply करना है तो आप अपने sunscreen के ऊपर makeup apply कर सकते हैं. That is the best way. राइट, ये मेकअप वाला क्वेश्चन हमारे युवा ने पूछा भी था, तो उनको जवाब मिल गया होगा. अच्छा, कई ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं या कई ऐसे मॉइस्चराइजर्स या दूसरे हमने प्रोडक्ट्स देखे हैं जिसमें एसपीएफ होता है 20%, 25%, और लोगों को लगता है कि हमने अगर फाउंडेशन लगा लिया जिसमें 20% एसपीएफ है तो अलग से हमें एक स्टैंड अलोन सनस्क्रीन की जरूरत क्यों है. तो क्या सही में अगर हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर ले जिनमें थोड़ा बहुत एसपीएफ है वो भी प्रोटेक्शन देगा या हमें एक स्टैंड अलोन एक प्रॉपर सनस्क्रीन चाहिए. जैसा मैंने बताया कि आइडियली सनस्क्रीन का अमाउंट जो अप्लाई होना चाहिए वो 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, विच इज द हम्म, अप्रोप्रिएट अमाउंट विच यू शुड अप्लाई. आप कम हम्म, सनस्क्रीन का अमाउंट अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली वो थोड़ी प्रोटेक्शन देगा, बट इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन विच यू शुड गेट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, right? So that is why it is right. important that we should apply a proper medical grade sunscreen on top of our routine, and then use whatever makeup product you're using, be it they have little SPF in it. So it is not a standalone thing. It might act as an adjunct, but it is not a standalone thing. ओके. तो डॉक्टर, बच्चों का सन एक्सपोजर बहुत होता है आजकल, स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, तो क्या उनको भी सनस्क्रीन लगाया जा सकता है और कौन सा सनस्क्रीन उनके लिए रिकमेंडेबल होता है. बिल्कुल सनस्क्रीन किड्स को भी लगाना चाहिए. सो स्टडीज हैव शोन दैट आफ्टर 6 months ऑफ एज सनस्क्रीन्स आर कम्प्लीटली सेफ इन चिल्ड्रन. इनके साथ साथ जो सनस्क्रीन प्रेफर करना चाहिए बच्चों में, दैट शुड बी अ फिजिकल सनस्क्रीन मेनली. फिजिकल सनस्क्रीन का मतलब होता है जिनमें फिल्टर्स होते हैं लाइक जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड. ये दोनों वाइडली यूज्ड फिजिकल फिल्टर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बनाते हैं. दे फिजिकली प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द सन. अनलाइक जो हमारी ऑर्गेनिक फिल्टर्स या केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं जिनमें कुछ फिल्टर्स होते हैं जो केमिकल्स होते हैं, दे गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू आवर स्किन. ओके, सो बच्चों के लिए जो आप सनस्क्रीन प्रेफर कर सकते हैं वो फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं. ओके. डॉक्टर, जैसा शुरू में भी मैंने कहा कि हम बीच डेस्टिनेशन पे जाते हैं अगर वेकेशन के लिए, देन वी मेक श्योर कि हम एक सनस्क्रीन कैरी कर रहे हैं. लेकिन जब हम माउंटेन्स अप हिल जाते हैं तो हमें लगता है कि हम तो काफी ठंडी जगह पर है, बर्फ है, यहाँ पे सनस्क्रीन की क्या जरूरत. बट देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली दोज हु रिसाइड देयर विद पिगमेंटेशन इश्यूज. तो क्या बर्फ, अप हिल, माउंटेन्स, यहाँ पे भी सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है. यस, बिकॉज जैसे जैसे सनस्क्रीन लगाना आपको अपहिल पे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप नॉर्मल एल्टीट्यूड से ऊपर जाते हैं, व्हेन यू गो टुवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड एरियाज, आपका सन एक्सपोजर जो है डायरेक्ट होता है, राइट? बिकॉज सन का आपके पास से डिस्टेंस भी
reduce करता है. So the sun exposure, the amount of sun rays which the UV rays which are reaching to you are more. साथ साथ जो snow होता है and surrounding areas में when people are going to mountains, they have snow around them. Snow is known to reflect around more than 90% rays. Snow reflects them back onto your skin. So that is why it is actually more harmful, and that is why it is more important to apply sunscreen while you are at higher altitude areas as compared to the sea level areas. ओके, जो लोग स्विम करते हैं या जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, वेरियस स्पोर्ट्स, एंड दे आर वेरी एक्टिव एंड दे स्वेट अ लॉट, दे हैव दिस कंप्लेंट कि सनस्क्रीन कितना लगाए, वी स्वेट इट आउट. सो व्हाट्स योर आंसर टू दैट? So definitely, as you swim, as you sweat, as you do any sort of activities which lead to removal of the sunscreen, जब आप apply करते हैं तो आपको उसे repeat करना चाहिए. जैसे मैंने बताया, every 2 hours ideally sunscreen को repeat करना चाहिए. वैसे ही whenever you swim, you should reapply the sunscreen. आजकल काफी अच्छी water resistant sunscreens भी आ गई हैं, which is also one of the label which you can read on the sunscreen box, is something which ओके. is called as water resistant. Water resistant sunscreens जो होती हैं, इनका मतलब होता है कि अगर आप 20 मिनट के लिए, they maintain the whatever SPF has been mentioned on the box, they maintain that SPF once you immerse yourself in water for at least 20 minutes, 2 sequential immersions in water for 20 minutes, right? So that is equivalent to 40 minutes. तो 40 minutes का आपको वो प्रोटेक्शन देते हैं, which is very good. And also there's another label called as very water resistant. ये भी एक label है. तो very water resistant का मतलब होता है ये आपको around 80 minutes के लिए same SPF protection देता है. So this is something which swimmers can look out for while looking out for a sunscreen. ओके. अच्छा, कई लोग हैं जो फिजिकल बैरियर्स, एक तरह से हम कहें, चाहे एक हैट हो, सनग्लासेस हो, कवरिंग योर फेस विद अ कॉटन स्कार्फ एटसेट्रा, ये भी करते हैं. डू दे आल्सो हेल्प सेविंग अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन? बिल्कुल. फिजिकल, इवन इफ यू जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन एंड गो आउट, ऑब्वियसली, एंड यू डोंट रीअप्लाई सनस्क्रीन बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट डू दैट, राइट? सो इसलिए ये फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक वेयरिंग फुल स्लीव क्लोथ्स, वेयरिंग अ ब्रॉड ब्रिम्ड हैट, वेयरिंग गुड सनग्लासेस, बिग सनग्लासेस. दिस बेसिकली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर स्किन फ्रॉम द सन. तो ये सनस्क्रीन के साथ आपको यूज करना है. इट इज नॉट लाइक ओनली सनस्क्रीन विल प्रोटेक्ट यू. राइट. तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्कुल जो फिजिकल बैरियर उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सनस्क्रीन के साथ जो रीएप्लीकेशन वाली बात है, आपने कहा भी कि कई लोग ये नहीं करते हैं और उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम्स हैं कि हम काम करते हैं, कहाँ चेहरा कब धोएं, कब लगाएं. ये एक बहुत कॉमन क्वेरी निकल के आता है, क्या बार बार हाथ धोएं, चेहरा धोएं रीएप्लीकेशन के लिए, क्या करें, कैसे करें? तो आप चेहरा आप रीअप्लाई करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड वॉश आवर फेस बिफोर रीअप्लाइंग द सनस्क्रीन, अनलेस एंड अनटिल लाइक यू हैव अप्लाइड अ मेकअप. सो मेकअप के ऊपर भी ऐसा नहीं है, यू शुड रीअप्लाई द सनस्क्रीन. ये सारे एक्सक्यूजेस आपको आपके सन को दूर नहीं कर सकते. आपको सन रेज से इफेक्ट तो होगा ही. सो यू हैव टू रीअप्लाई द सनस्क्रीन. दैट इज अ मस्ट. क्योंकि हम अपने आप को, अपनी स्किन को सन के या जो दूसरे लाइट सोर्सेज हैं उनके जो हार्मफुल रेडिएशन से उनसे बचाने की बात कर रहे हैं. तो सनस्क्रीन एंड फिजिकल बैरियर्स आपने कहा दोनों जरूरी है और रेगुलरली जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी हम अपने स्किन बैरियर को कैसे मजबूत कर सकते हैं डॉक्टर, जिससे हमारी स्किन जो है वो बेहतर हो? तो आपकी स्किन बेटर करने के लिए यू शुड यूज अनलेस एंड अनटिल लाइक इफ यू डोंट हैव एनी एक्टिव स्किन कंसर्न, तो आपको आइडियली अच्छा क्लेंजर साथ साथ एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए. वी हैव गुड मेडिकल ग्रेड मॉइस्चराइजर्स एज वेल जो हमारी स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. एंड ऑफ कोर्स you have to top it up with a good sunscreen so that harmful radiations of the sun don't affect your skin. तो ये है आपका राज हेल्दी स्किन के लिए. और क्या अच्छा खाना, अच्छा पीना, गुड लाइफस्टाइल, बिकॉज वी ऑफन कि जो अंदर जाता है वही बाहर से दिखता है. बिल्कुल बिल्कुल. सो अब हमने फिजिकल प्रोटेक्शन की बात कर ली. सो स्किन ऑब्वियसली इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट एवर योर गट
होल्स, राइट? सो Right. आपको डेफिनेटली एक अच्छा आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी चाहिए. एंटीऑक्सीडेंट्स आर समथिंग विच अगेन फाइट द फ्री रेडिकल्स विच डैमेज आवर स्किन, राइट? तो हमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी रिच फूड स्टफ्स लेने चाहिए. उसके साथ साथ वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, वी शुड अवॉइड अल्कोहल, बिकॉज स्मोकिंग एंड अल्कोहल ऑल्सो हार्म द स्किन. वो तो बॉडी के लिए भी बुरा है, साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत बुरा है. एंड ऑल्सो adequate water intake should be there, Right. which you should take daily. Right. And before we sum up the whole session, Dr. Tandon, any take-home message for our viewers? Yeah, definitely. So I would want to recommend that whenever you look out for sunscreen, always look out for a broad spectrum sunscreen, which protects you from all the four rays, UVA, UVB, visible light and infrared. साथ साथ ये ध्यान रखें कि अपने स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन सिलेक्ट करें, ताकि आप उसे रेगुलरली यूज कर सकें. फिजिकल प्रोटेक्शन को अच्छे से फॉलो करें एंड साथ साथ सनस्क्रीन डेफिनेटली अप्लाई करें एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट में अप्लाई करें, लाइक आई टोल्ड यू. Right. Thank you so very much, Dr. Megha Dandan. It was wonderful talking to you. I'm sure most of us are going to run to a chemist shop or to a, dermat right away to find out a good sunscreen, and we are going to start using sunscreen on a regular basis with proper reapplications, with proper quantity to be applied. Plus, उसके साथ physical barrier भी इस्तेमाल करेंगे. Thank you so very much for making this whole session so informative. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Bye-bye, doctor. And viewers, Bye-bye. thank you for your active participation. Stay happy, stay healthy, stay spotless, and take good care of yourself. Goodbye. Have a great day ahead.